complains of post-coital bleeding for last 6 months. She has not consulted anybody else up till now. जी आपके पास आ गई, अब आप बताइए आप कैसे प्रोसीड करेंगे. Okay, sir. First of all, I will introduce myself to the patient that I'm Dr. Maria Khan. I'm here to take your history and do examination, and I need your consent. Then I will ask the name of the patient. Then I will ask about confirm that the report belongs to the patient, that it is she, according to the report, she's 35 years old. She is para 2 +2. And has presented with a complaint of postcoital bleeding for the past 6 months. Then I will ask about the duration of marriage. एक मिनट. जी जी. डॉक्टर मारिया, आपने 1 मिनट या 1.5 मिनट अपना जाया कर दिया. खामखा आपने सिर्फ इतना कहना था, I'll introduce myself, then ask few questions and then examination of the patient. ये कह के 10 सेकंड में फिर जो आप सवाल पूछना चाहते हैं पेशेंट से वो पूछना शुरू कीजिए. ये दोहराइए मत जो मैंने पेश किया है और कुछ. फिर हम दोबारा शुरू करते हैं. मैं दोबारा टाइम करूंगा आपको. जी, ये एज 35, para 2 +2. Patient complains of postcoital bleeding for last 6 months, and she has not consulted anybody else. You're the first person she has come to consult. Okay. First of all, I will introduce myself to the patient. Then I will ask her name, and I will ask her marriage duration, and I will ask about whether her deliveries were normal and her the age of her last born baby. I will ask about the last menstrual period. Then I'll ask about the active complaints with which she has presented, that is postcoital bleeding. And then I will ask about bleeding, whether it is the amount of postcoital bleeding, I will quantify the bleeding. And by asking the number of pads she uses, and whether fully soaked, partially soaked, whether the blood is fresh, and whether associated with any clot. And then I will ask her how many such episodes. Hello. In the past 6 months, and that whether the yes sir. नहीं वो आपकी आवाज चले आप फिर शुरू हो. सर बिल्कुल हेडफोन हटा देती. हाँ वो उस वक्त ऐसे आधे मिनट के लिए आवाज नहीं आई थी. चलते जाइए. I will ask quantify the bleeding, whether quantify the amount of bleeding, whether the number of pads soaked, and the number of such episodes, and whether pads fully soaked, partially soaked, whether fresh blood, and whether associated. मैं इंटरप्ट करता हूँ. पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग में अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में होती है. तो वो सारे पैड वैड उसमें आते हैं. इसमें 25 years कि I will ask her how much the bleeding is. Full stop. आगे. Okay, sir. Then I will ask about any vaginal discharge, if present, whether color, amount of discharge, and whether associated with any itching, smell, and whether it is blood stained or not. Then I will ask about any associated dyspareunia, whether superficial and deep, or any associated chronic lower abdominal pain, and its characteristics. That is site of the pain, radiation, associated bowel and bladder problems, and how does she quantify the pain, and character, and associated with urinary and bowel symptoms. Then I will ask about any drug intake, for example, for any cancerous, for example, tamoxifen use, whether any contraceptive use, for example, combined oral contraceptive pills. And then I will ask about any weight loss, loss of appetite, or any lump palpable anywhere in the body. I will ask about symptoms of, for example, any
blood in urine, bowel bleeding per rectum, or any flank pain, or any right hypochondrial pain, or any chest pain. I will ask about risk factors, that is smoking, or whether she's in a and her husband are in a monogamous relationship, and whether there's any history of a previous history of vaginal discharge or perineal lesions, or smoking, and whether any immunocompromised trait, for example, diabetes or HIV, and whether any travel abroad. I will ask about whether the patient has any whether she has visited any hospital for this problem, and if visited, or she has come now, and what tests have already been done, whether she had been her pap smear has been done previously or not, the report of the pap smear, and whether any per speculum examination has been done, whether any examination under anesthesia, chest X-ray, EUA, and examination, let's say IVU or MRI, any expensive done. After that, I will ask about any blood pressure, diabetes, or asthma, or any tuberculosis of the patient, and any surgical procedure done, major or minor surgical procedure done. Then I will ask about any drug allergy, and any and I will ask about her socioeconomic state. After that, I will move on to the examination. I want the patient BMI. I want her. एक मिनट बस रुक जाइए, आपने 6 मिनट लिए हैं। तो ड्रग इनटेक, OCP, वेट लॉस, पेन, स्पेशली कहाँ पे कहाँ, इवन चेस्ट पेन और वगैरह वगैरह वगैरह, और वो यहाँ आने से पहले उसका CT हुआ कि नहीं हुआ, कोई और टेस्ट हुए कि नहीं हुए, ये सारा सवाल पूछे। मैं अगर कहूँ कि इनमें से रेलेवेंट क्वेश्चन तो बहुत थोड़े हैं आपके, फोकस्ड ऑन टू रेलेवेंस। मैंने कह दिया था आपको जब हिस्ट्री की कि एज 35, पैरा 2+2, postcoital bleeding for 6 months. You're the first doctor she has consulted. ये मेरे अल्फाज थे, सो एग्जामिनर को ध्यान से सुनो। You are the first doctor she has consulted. तो उसमें आपने उसके पास CT, MRI और वो सारा वो कहाँ हुआ होगा जब पहला डॉक्टर आप हैं जिसको वो कंसल्ट कर रही है। तो आप ध्यान से एग्जामिनर की बात, हर बात को सुनो। अगर मैंने कह दिया है आपको कि 6 महीने से पोस्टकोइटल ब्लीडिंग है और किसी को कंसल्ट नहीं किया, और द फर्स्ट डॉक्टर, तो डोंट से कि जी पास्ट में आपका CT हुआ, PV हुई, EU हुआ, और बहुत कुछ आप पूछती रही। पैप स्मीयर यस रेलेवेंट है, क्योंकि पैप स्मीयर तो 35 में बहुत दफा हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ एस्थमा है, ये सारी बातें जो हैं वो आपको, आपका टाइम जाया हो रहा है, आपका वक्त कम हो गया, और रेलेवेंस जो है मैं आपको फिर लेके जाऊंगा इस पे, हिस्ट्री पे, कोई बात नहीं है, हमारे पास टाइम ही टाइम। तो हम पहले, मैं आपसे अब पूछता हूँ, हट जाए इस पेशेंट से। जो किताब में पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए, आपने लफ्ज़ से एक दो रिस्क फैक्टर का इस्तेमाल किया, पॉसिबल किताब में रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए हैं, वो मुझे 2, 3, 4 गिनवा दीजिए, गिनवा दीजिए। फिर मैं वापस पेशेंट पे आऊंगा। जी, smoking, age of first coitus, husband, multiple sexual partners, patients, multiple sexual partners, any pelvic infections due to, which can lead to human papilloma virus, or any perineal lesions, and immunocompromised states, for example, HIV and बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और and no use of condoms, that is unprotected coitus. जी बिल्कुल ठीक है आपने, यूज ऑफ कंडोम।
और multi-parity, increased parity. वेरी इंपॉर्टेंट, पैरिटी उसकी। ये हम तो इस पेशेंट से हटके पूछ रहे हैं ना, तो हमें अब इसमें पता चल गया पैरिटी इसकी 2+2 है। तो लेकिन ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो जनरली आपने बोला। आपने लोअर सोशल इकोनॉमिक ग्रुप भी पहले बोला था, Yes, sir. ठीक है, Yes. सोशल ग्रुप। और अगर आपके ये रिस्क फैक्टर्स हैं, थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं कि प्रीवियस pap smear, any history of surgery on cervix या biopsy Okay, previous। yes. अगर हम ये 1 2 3 4 5 फैक्टर्स बोलिए, आपने हिस्ट्री में ये पूछने हैं बस। Yes, sir. स्मोकिंग भी आपने बोला था, तो ये फैक्टर्स पूछने हैं बस। आपको आधा मिनट लगेगा, ज्यादा 1 मिनट लगेगा। तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगी जब आप पूछते हैं कि आर यू ए स्मोकर, आपके मल्टीपल पार्ट, आपकी पहली शादी है और शादियां तो नहीं। इस तरह से ये सवाल पूछे जाएंगे। आपको पहले वजाइनल डिस्चार्ज या यहाँ की इन्फेक्शन का कोई इलाज तो नहीं करवाया, आपने वैक्सीनेशन तो नहीं करवाई, तो अगेंस्ट कार्सिनोमा सर्विक्स, अगर आप इम्यून डेफिशिएंसी या वीकनेस, वो सारे अगर आप पूछ लेंगे कि आप कंडोम इस्तेमाल करते हैं क्यों, एनी अदर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, तो आपका एग्जामिनर समझ जाएगा यू नो द रिस्क फैक्टर्स बस। फिर हम आगे चलेंगे। और ये सारे इस तरह से पूछने में आपको हार्डली आधा मिनट लगेगा। अब मैं टाइम करता हूँ, 10 बजने में 10 मिनट मेरी घड़ी में। मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, आई एम सॉरी अगर बार बार मैं करता हूँ, लेकिन इससे आपको आदत पड़ जाए सोचने की कि मैंने क्या सवाल पूछने हैं। ऐसे ही आप 3rd ईयर की हिस्ट्री शुरू कर देते हैं और वो लंबा उस पर वक्त ज़ाया हो जाता है आपका। आपने पता नहीं क्या क्या पूछा है, बॉल की हिस्ट्री पूछी, यूरिन की में भी रेलेवेंट थोड़ी सी हो जाती है कि अगर एडवांस कैंसर है तो वहाँ हो सकता है, लेकिन जनरली नॉट। एस्थमा की हिस्ट्री पूछी आपने डायबिटीज की हिस्ट्री पूछी, आपने इंसुलिन की पता क्या ये कुछ ये पूछा। ये सारे मतलब बहुत दूर का रिश्ता है इनका सीए सर्विस के साथ, बहुत दूर का रिश्ता है। तो अब मैं टाइम करूंगा, इसकी हिस्ट्री आप आखिर में कह सकते हैं कि कोई अब तक कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट तो नहीं हो। वो मैंने कह दिया था कि इसने किसी को कंसल्ट नहीं किया, लेकिन उसको रिकन्फर्म आपने कर लिया कि अब तक आपने किसी डॉक्टर को ये इस सिलसिले में मिली है, कोई टेस्ट या ट्रीटमेंट हुआ आपका, एक फिक्रा बस। चले, यही पेशेंट है, मैं बात फिर आता हूँ। मेरी घड़ी में बज गए हैं 7 मिनट, रहते हैं 10 बजने। चले, आपके पास डॉक्टर मारी। Yes, sir. First, I will introduce myself to the patient, ask her name, her age, her educational status, her duration of marriage, whether first marriage, and then I will ask her about her parity that is already mentioned and her last menstrual period. Then I will ask her about her active complaint, that is postpartum bleeding for the past 6 months. I will ask about the amount of bleeding and the number of such episodes, and then I will ask about any intermenstrual bleeding, and I will ask about any vaginal discharge, the amount of discharge, color of discharge, smell, itching, and whether blood stain. Then I will ask about dyspareunia, and I will ask about any associated lower abdominal pain. I will ask about
any weight loss, loss of appetite, or feeling of lump anywhere in the body, and whether she's having any bleeding per urethrum or bleeding in stools, or any flank pain or right upper quadrant pain or chest pain. I will ask about whether she has any history of smoking, personal history of multiple sexual partners, and husband history of multiple sexual partners, age of first coitus, her socioeconomic status, and whether any immunocompromised state, whether she has used condoms or other methods of contraception, and what was the pap smear report. And I will ask about yes sir. पैप्स मेरे को जरा जोर से फिर के दोहरा दीजिए, जो आपने रवानी में कह दिया, हो सकता है एकदम को सुना भी ना हो कि क्योंकि pap smear is important, whether she had screening tests like pap smear, and Yes, how sir. frequently, when was it last, इस Yes, तरह से ताकि हाईलाइट करने में आपको मदद मिले. Her pap smear report and last pap smear were done, and result of that smear, and any senior lesions or previous history of any vaginal discharge in her or in her husband. Then I will ask about any past medical history of significance and past any. आजकल के ज़माने में उसकी वैक्सीनेशन भी बड़ी इम्पोर्टेंट है. Did she have any vaccination against carcinoma cervix, cancer cervix? Yes, sir. I will ask about vaccination status of the patient as well. Then I'll ask about past medical history of significance and any major minor surgical procedure done on the patient. पर सिर्फ ये पहला फिक्र आपका काफी है. Any other history बस. Okay, and I will ask about family history of breast, colorectal, uterine, and ovarian carcinoma. I will ask about. देखे ना. आपने बोल दिया उसका सीए सर्विक्स से तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है ना. Yes, sir. तो इसलिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. मैं कह रहा हूँ focus on to सीए सर्विक्स. ठीक है sir. Then I will ask about her social. I will ask about her social status and. वो बहुत शुरू में बोल लेना था आपने. जैसे आपने बोला कब शादी हुई है, how long she has been married, कितने बच्चे हैं, और ये पहली शादी है, दूसरी शादी है आपने पूछा, और तीसरा ये जो कि आप हर खामन काम क्या करता है. बस. और फिर ये उसी ऑर्डर में इस तरह से पहले एलिमिनेट कर दीजिए बातें, और ये रिस्क फैक्टर पूछिए. चलें अब बात को आगे बढ़ाते हैं. अब ये उसकी हिस्ट्री हो गई, सब प्रैक्टिकली नेगेटिव है एक्सेप्ट पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग. और फिर आगे चलिए. Then I will ask about the general look of the patient, whether cachexic, her BMI. Then I will ask about her vitals, any pallor, jaundice. नहीं, ये ask तो नहीं है ना, ये तो I'll examine her and find out this. अब आप examination पे चलिए. Yes, sir. Sorry. BMI, her vitals. Then I will look for any pallor, sign, clubbing, any jaundice, any accessible lymph nodes, for example, cervical or inguinal lymph nodes enlarged. Then I will, after the general, then I will look for the thyroid and chest and breast examination. फिर वही आप मेरा अब तक नहीं समझी आप. Sir, sorry, अब मैंने chest examination. जब आप physical examination बोलना है तो उसके कह दिए I'll conduct her physical examination and look for relevant features. Okay, sir. I will conduct her physical. ये सर्विस की कोई relevant feature है तो बोलिए, otherwise बस BMI anemia बोल के any lymphadenopathy फिर abdomen पे आ जाएगी. Yes, sir. On abdominal examination, I will look for on inspection. I will look for scar marks or any other findings. Then on superficial palpation, I will look for any tenderness, and on deep palpation, I will look for any mass or visceromegaly, flank tenderness. And then on local examination, I will look at the vulva or any bleeding or discharge. एक मिनट. आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे सीए सर्विस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैम, सर, hardly anything except
maybe lymphadenopathy or any mass in lower abdomen. Sir, अगर वो चलो hydronephrosis ये भी हो गया, लेकिन वो relevant both के I look for any hydronephrosis, mass lower abdomen or any lymphadenopathy. तीन Okay. लफ्ज बोल के बात आगे चलेगी, Okay, बात sir. आगे करनी है। तो ये सारा आपने बहुत कुछ जरूरी नहीं है, बात मेरी आप तक पहुंची नहीं, आप मेरी बात को अब तक समझी नहीं। बात मेरी यह है कि जो बीमारी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, नंबर 1 डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, उसके रिलेटेड आपने सवाल पूछने हैं। Yes, sir. ज्यादा और उसी रिलेटेड फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, Yes, sir. फिर उसी के आगे बात को आगे बढ़ाना है। आप लोग गुम हो जाते हो 3rd ईयर की हिस्ट्री में, उसका साइनोसिस देखूंगी, उसके क्लबिंग देखूंगी, आपने क्लबिंग बोला, तो ये बहुत कुछ ऐसे ही है, आपका वक्त ज़ाया होता है, आपको टाइम बचाना है फॉर डिस्कशन। Yes, sir. तो आप ये सारी कह के बातें अपना डिस्कशन के लिए मिनिमम टाइम आप छोड़ते हैं, फिर उसमें मैं कहा करता हूँ, बार बार कहता हूँ, हर लेक्चर में कहता हूँ, अगर आपका गायनी का केस हो तो उसका पूरा ट्रीटमेंट करके, उसकी सर्जरी जरूरी है, सर्जरी करके, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को डील करके मरीज को घर भेज देंगी घंटी बजने से पहले, तो फिर आप पास होंगी। आप इस तरह लंबी हिस्ट्री में अभी मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही होते हैं या वहां तक भी नहीं पहुंचते, घंटी बज जाती है तो मरीज का तो इलाज ही ना हुआ, आप फेल हो जाते, आप फेल हो जाते। तो आपका पास होना फेल होना एग्जामिनर के हाथ में नहीं है, आपके अपने हाथ में है। You have to make best use of the time available. तो ये हम फिर आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे। I'll general physical examination में I'll do BMI or look for anemia and any other specific finding. Then on abdominal examination, I'll look for hydronephrosis, any mass abdomen or any other feature. 10 सेकंड में मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन abdomen जनरल और abdomen खत्म कर दी। Yes, sir. क्योंकि आप you are running, you should be running towards the diagnosis, उसका ट्रीटमेंट और फिर पास होना है आपने। Yes, sir. Leave डॉक्टर yourself पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी करेंगे ना पूरा, और वो डिटेल जो वहाँ पे जैसे लास्ट टाइम सीए वल्वा का केस आया था, तो वो डिटेल पूछ रहे थे कि वल्वा पे क्या देखोगे, रेक्टम पे क्या देखोगे, इस तरह से पूरा था। तो लोकल पे आप आ गई ना, तो ठीक कहा तो एग्जामिनर ने, आप के सीए वल्वा आप कह रही हैं मैं उसकी क्लबिंग देखूंगी, उसका अनीमिया छोड़ के फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे आ जाएंगी, वेसिकुलर ब्रीदिंग है कि नहीं है, फिर हार्ट पे आ जाएंगी, एनी मरमर है कि नहीं है। इतना सारा टाइम आपने जाया कर दिया। जब लोकल पे आएंगी आप फिर ये भूल जाएंगी कि रेक्टम ब्लैडर, चूंकि टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, इसलिए जो बीमारी है उस पर फोकस करो, उसके रिलेटेड सवाल पूछिए और उसके रिलेटेड फिजिकल एग्जामिनेशन चलिए। ये आज मैंने काफी इस पे वक्त ज़ाया कर दिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कम है, डॉक्टर मारिया की ज्यादा है कि वो इधर उधर नहीं घूमना। आपने आप प्रैक्टिस कीजिए इस बात की कि मैंने फाइब्रॉइड की हिस्ट्री लेनी है, फाइब्रॉइड में ये पूछने हैं बस, फाइब्रॉइड रिलेटेड। मैंने ओवेरियन सिस्ट की हिस्ट्री लेनी, ओवेरियन सिस्ट के रिलेटेड जो है वो पूछिए। आप घूम फिर के वो 3rd ईयर में से नहीं निकलते, मैं बार बार आपको कहता हूँ। 3rd ईयर में आपको सारा कुछ, उसका साइनोसिस देखो, उसके क्लबिंग देखो, उसका ये देखो, उसका वो, इतना लंबा सारा, इसलिए
पढ़ाते हैं वो सही है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा। तो आपको आदत पड़ जाए कि वो देखने की, लेकिन आप क्लबिंग, साइनोसिस उसमें देखेंगे जहाँ पेशेंट सीवियर एनीमिया की है या उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या कुछ है, आप हर एक में देखना शुरू कर देते हैं। आप योर पोस्ट ग्रेजुएट की जरूरत यह है कि वो अपने जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें से निकालना है, उसमें से निकालना है। और सर, उसका एक मिनट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में टॉप पे जो नंबर 1 है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम इंक्वायरी उस टॉपिक के मतलब होनी चाहिए। यहाँ 35 ईयर ओल्ड पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग 6 months, हमारा पहला डायग्नोसिस ये सर्विक्स है या कोई और, फिर एक्टोपी है, पॉलिप है, सर्विक्स रिलेटेड है। तो ये 3-4 सर्विक्स के कह के फिर आएगा वेजिनाइटिस या ट्रॉमा या कुछ और। तो ये सारी बातें देखने के लिए नंबर 1 पे चूंकि सीए सर्विक्स है, सो सीए सर्विस के रिस्क फैक्टर्स हमने पूछने। सीए सर्विस का रिलेटेड हम लोकल एग्जामिनेशन करते हैं। वो जो अभी कहा कि सीए वल्वा का था, उन्होंने कहा अपने रेक्टम और ब्लैडर को क्यों नहीं देखा। जाहिर है कि हम जब स्टेज 3-4 की बात करते हैं कोई भी ग्रोथ की, तो लोकल एक्सटेंशन इनटू द नेबरिंग ऑर्गन्स है, इनटू द नेबरिंग ऑर्गन्स। अगर सीए सर्विक्स स्टेज 4 है तो मे बी इट इज इन्वेडिंग रेक्टम, मे बी इट इज इन्वेडिंग ब्लैडर, ये लोकल ऑर्गन्स हैं। तो फिर हमने उसके रिलेटेड पूछा, आपने पूछा कि एनी ब्लीडिंग पर रेक्टम, मैंने नहीं उस पर एतराज किया। तो लेकिन फिर मैं आता हूँ कि आप सारे जितने भी आप बैठे सुन रहे हैं, सिर्फ मारिया का नहीं कह रहा, आप सब जो ही पेशेंट पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग 6 months, इमीडिएटली सोचो, अपने कागज पे लिख लो पॉसिबिलिटीज, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग है, नंबर 1 इस पेशेंट 35 ईयर में सीए सर्विक्स, फिर एक्टोपी, फिर पॉलिप, ये सर्विक्स रिलेटेड हो गए, फिर वजाइना में कोई ट्रॉमा या वेजिनाइटिस, या फिर और ये 5 या 3-4 से ज्यादा डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं सोचना चाहिए आपको इम्तिहान में। वैसे तो लिस्ट बनाने को 10-20 की बना लीजिए, जो 10-20 की लिस्ट बनाता है उसका रिस्क फेलियर का बढ़ जाता है। आपने 2-3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसके रिलेटेड सवाल पूछने, उसके रिलेटेड एग्जामिनेशन कर। आई एम सॉरी कि मैंने आपका इतना वक्त, नियरली 35 मिनट्स ज़ाया कर दिए इस बात पे, पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपको पेश किया जाए एज 35 पैरा 2 पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग फॉर 6 months, इमीडिएटली आपका दिमाग जो है वो उसको घुमा दीजिए सारी टेक्स्ट बुक पे कि इसको क्या होगा। वो फिर उस पहला सीए सर्विस, तो उसके रिलेटेड एक मिनट, हेलो, हाँ जी, और जी मैं इस वक्त तो लेक्चर देता हूँ, बुध को मेरा लेक्चर होता है, ना डिस्टर्ब किया करें। तो हम फिर आ गए वापस, चलें फिजिकल एग्जामिनेशन से शुरू करते हैं डॉक्टर मारी। Yes, sir. I will look for general. My apologies to all of you, those who are listening to me, कि मैं ये बात बहुत दफा दोहरा चुका हूँ, लेकिन हर दफा दोहराने की जरूरत महसूस करता हूँ, क्योंकि प्रेजेंटर जो है वो फिर उसी तरफ चला जाता है, डी रेल हो जाता है, तो इसलिए आपको रेल पे चढ़ाने के लिए इतना मुझे लंबा लेक्चर देना पड़ता है, सॉरी। चलिए जाके फिजिकल एग्जामिनेशन। Okay, I will look. I will ask for the. I will examine the patient's BMI. I will examine the vitals, and I will. आपने पिछली दफा भी बोला तो मैंने इंटरप्ट किया, आस्क नहीं है फिजिकल एग्जामिनेशन में, तो I will find out. Yes, sir. Examine.
आस्क नहीं है, आस्क तो हिस्ट्री है. So on physical examination, I'll find out her BMI. Her vitals, and then any pepper, jaundice, and then I will look for any other positive findings like any enlarged pelvic or inguinal or cervical lymph nodes. Then I will move on to the abdominal examination and look for any mass. एक मिनट, कोई दवा आपने ये फिक्रा बोला inguinal और cervical. Cervical यहाँ कहाँ आ गया है भला? Sorry, supraclavicular. Supraclavicular. Sorry, I'm so supraclavicular. हाँ, तो लेकिन उनका उन ग्लैंड्स का इसमें कहाँ तल्लक है बताइए. उन ये नेक के ग्लैंड्स का चाहे सुप्राक्लेविकुलर है चाहे सर्वाइकल भी कह दें तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका इस बात से क्या तल्लक है? बाबा learn to focus. जो प्रॉब्लम है उस पे मुझे इनगुइनल समझ आती है. चलो आगे चलो. Sir, then I will look for the any per abdominal examination. I will look for any mass in the abdomen or any other positive finding. Then on examination, mass lower abdomen में बोलो. Yes, sir. Mass lower abdomen. Then on any hydronephrosis or enlargement of kidneys. Yes, sir. Then on local examination, I will look for any bleeding or discharge, and on then per speculum examination, I will look for the vagina. Look at the vaginal walls, and then look at the cervix, whether any growth or ulceration or any other lesion. If lesion present, the size of the lesion, the position of the site of the lesion, and whether necrotic or friable, and surface of the lesion. मैं बिल्कुल पास नहीं करूँगा. मेरा फिक्रा मैं दोहरा दूं. मैं जब लाइव कोर्स किया करता था, मैं जिसको इस तरह कहना होता था, मैं 4-6 दफा एक ही सांस में कहता फेल 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 फेल, इस तरह से बोलता था. बाबा आप स्पेक्युलर एग्जामिनेशन करते हैं तो इस पेशेंट में जहाँ सी सर्विस का आपका डायग्नोसिस है, आप क्या विजुअली नजर आएगा आपको? या पॉलिप नजर आएगा या अल्सर नजर आएगा? ये बोलिए. आई लुक एट द सर्विक्स whether there is any ulcerative growth or polypoidal growth. If there is any ulcer, size of the ulcer, location of the ulcer, margins, ये वो examiner को पता चले आपको अल्सर देखना आता है. If there is a polyp, size of the polyp, its attachment and surface of the polyp. ये और फिर अगर अल्सर है तो is it involving any part of the vagina or not visibly? ये आपको यानी जो बीमारी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन पूरी तरह आनी चाहिए. फिर बोलो on speculum examination. On speculum examination, I will look whether there is any lesion present on the cervix, whether it's ulcerative or polypoidal. If ulcerative, I will look at the margins, the surface, and the size and site of the lesion. Or if polypoidal, then I will look at the surface, size, and origin of the polyp. Attachment. Yes, sir. Then. Do bimanual examination very gently. In that, I will assess the cervix as well as the uterus, its size, position, and next, and as well as the parametrial involvement. And then on perrectal, I will do perrectal. Parametrial involvement ये कोई लफ्ज नहीं है. Sorry, any form. Any thickening or extension of the mass into the vagina and parametrium. Yes, sir. तो आपको थिकनिंग महसूस होती है, थिक चले. और फिर इसी तरह vagina और parametrium में जाके whether it is involving whole of parametrium reaching pelvic bones
or not on Yes. all sides of the cervix. Chale. And lastly, per-rectal examination for rectal mucosa. Any fixation of the anterior wall, rectal wall. अगर Yes. ग्रोथ उसको इन्वॉल्व करेगी वो रेक्टम जो है फिक्स हो जाएगी और बड़ा रेयर है कि वो इन्वेड करके म्यूकोसा तक पहुंचे। ये फिजिकल एग्जामिनेशन समझो हो गया। अब Yes. देयर इज सम अल्सरेटिव ग्रोथ एट द एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स जो आपने देखा और उस अल्सर का साइज है लेट्स से 3 सेंटीमीटर ब्लीड्स ऑन टच। आपने ये लफ्ज नहीं बोला था। whether that also bleeds on touch, ये टिपिकल है, फिक्रा बोलना चाहिए सीए सर्विक्स में। Yes. जी फिर बोलिए। Then the investigations in which I will first the baseline and then the specific investigations in which I will need the ultrasound of the patient, in which including ultrasound KUB, in which I will assess the size and adnexal involvement and parametrial involvement and any hydronephrosis if present. Then the any LFTs, RFTs, chest X-ray, and previous pap smear report, and after examination under anesthesia, I will decide further investigations. Good. यहाँ तक यही रुकते हैं। मोहतरमा, आपने RFTs, LFTs और बहुत सारे टेस्ट बोल के आखिर में बोला पैप्स में। Isn't it right? Yes, sir. क्या पैप्स में सबसे पहले नहीं बोलना चाहिए था? Yes, sir. क्योंकि RFTs, LFTs उतने रेलेवेंट टेस्ट नहीं है जितना पैप स्मीयर है। तो आपको फोकस ऑन टू सीए सर्विक्स होना चाहिए था। Yes, sir. सर अगर कोई सर्विक्स पे ग्रोथ है तब भी हमने पैप स्मीयर का बोलना है? जी, पास्ट हिस्ट्री ऑफ पैप स्मीयर तो बोले, यहाँ तो पैप स्मीयर होने का कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन अगर इतनी ब्लीडिंग है और उसमें पैप स्मीयर क्या करेगा? नहीं, लेकिन फिर भी आपने रिलेटेड टू सीए सर्विस बोलना है कि पास पैप स्मीयर है, उसकी रिपोर्ट देखूंगी। अब अगर पैप स्मीयर पॉसिबल है तो आई विल टेक पैप स्मीयर। पॉसिबल है, अगर वहाँ ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है और कोई वजाइनल डिस्चार्ज भी नेक्रोटिक का नहीं है तो पैप स्मीयर हो सकता है, लेकिन इफ पॉसिबल। लेकिन पैप स्मीयर का सबसे आखिर में बोलना तो जायज़ नहीं है। पहले अगर नहीं बोला इग्नोर इट, फिर नहीं बोला कोई बात नहीं। जैसा अभी आपने किसी ने कहा कि वहाँ जहाँ इतना ब्लड हो, नेक्रोटिक मटेरियल पड़ा हो, वहाँ तो पैप स्मीयर का यूजलेस है, वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि कैंसर सेल्स तो बड़े वॉश अवे और नेक्रोटिक मटेरियल में वो नजर ही नहीं आते, तो यूजलेस है। ना बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बोलना है तो पैप स्मीयर सबसे पहले बोलना चाहिए in a patient who is got, if possible, I will review old reports, and if I can take, there's not too much of bleeding or necrotic material, I'll take PAPs. इस तरह से बोल, आप एक एक्सपर्ट की तरह बोल रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हर एक में नहीं है। ये थर्ड ईयर की बात, मैं बार बार आपको थर्ड ईयर में ले जाता हूँ, थर्ड ईयर की बात नहीं। इसी तरह आपने बोला CT, MRI वगैरह, वो जरूरी नहीं है पेशेंट के सीए सर्विस के लिए। ठीक है, दे कैन बी यूजफुल। पीको की रिकमेंडेशन है कि अब उनको शामिल कर लिया जाए, लेकिन फिर भी शामिल कर लिया जाए, इतने एसेंशियल नहीं है। चले
आप ये इन्वेस्टिगेशन करें। अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लेट्स से आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया सीए सर्विस का, Yes, sir. Biopsy पे. बायोप्सी हो गई, बायोप्सी पे कंफर्म। जी Yes. जी, फर्दर हाउ विल यू प्रोसीड? Sir, then I will proceed according to the stage of the CA cervix. तो ये बोलिए ना, then I like to stage the disease. Yes, आपने sir. करना और किसी ने क्या करना, पेशेंट तो आपकी। तो I would like to stage the disease. Yes, sir. फिर आज के इम्तिहान में नहीं, तो लेकिन फिर आपको वो पूछेगा, हर एग्जामिनर पूछेगा, हाउ विल यू स्टेज द डिजीज? ये लिख लीजिए, हाउ विल यू स्टेज द डिजीज, एंड सेकेंडली डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ द डिजीज। ये आप जरूर पढ़ लीजिए, स्टेज 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है, 4 में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इम्तिहान में ये डिस्क्रिप्शन आप शुरू नहीं करेंगी unless the examiner asks you. यहाँ तो सिंपल ये बोलेगी, I like to stage the disease, then treatment of the patient depends upon the stage of the disease. Full stop. Full stop. Let the examiner tell you कि ये stage 1 है, 1A है, B है, जो भी है। आप पूछिए 1 है तो 1A है, B और 2 है तो वो भी। तो फिर उसका फिर आप बताइए आप क्या करेंगे, राइट? लेट्स से फिर बोलिए, ये पेशेंट है, आपने डायग्नोसिस कंफर्म आ गया, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आ गई कि शी हैज गॉट सीए सर्विक्स, हाउ विल यू मैनेज इट? Sir, I will first of all stage the patient disease of the patient. Then I will counsel the patient regarding the diagnosis that and stage. Diagnosis and stage of the patient, that very empathetically that this is a diagnosed case of cancer of the cervix, and I will tell her about the different treatment options available for her according to her fertility wishes, and then I will tell about the prognosis of her prognosis and 5-year survival according to her stage of the disease, and about the pros, about the different side effects of various treatment options and the risks related. Then I will manage multidisciplinary. मोहतरमा ये स्टेज 1 है। Stage 1 disease. Stage 1A कौन सी सर? सर आप हाँ ठीक पूछा आपने, मैंने 1 बोला बस, तो आपने पूछा आगे इज इट स्टेज 1A और 1B? यस सर। आपका क्वेश्चन ठीक है। यस सर। अब मैंने बोल दिया स्टेज 1B। स्टेज 1B में सर B1, B2, B3। B1। Sir, B1. What's the difference between B1 and B2? B1 is when the depth is more than 5 mm, but the size of the tumor is less than 2 centimeters. It is stage B1. When the size of the dimensions of the tumor are between 2 centimeter and less than 4 centimeter, it is stage 1B2. And when it is more than 4 centimeter, it is 1B3. Good, very good. माशाल्लाह। चलो तो फिर अब लेट्स से कि ये स्टेज 1B है, B1। Sir, 1B1 I will proceed according to the patient's if she wants to conserve her fertility. The in one, yes. पहले आप बोलिए, पेशेंट की विश तो बाद में आएगी कि in this patient she can be treated surgically or by radiation, yes, or chemoradiation. Yes. तो ये है, और I will give the patient these 2 choices, or discuss with multidisciplinary, discuss with my colleagues. Yes, sir.
After discussion with multidisciplinary team, she will be given she will be told about the treatment modalities. That is either it can be surgery or radio therapy, radical radiotherapy. And if she opts for surgery, then the options are at this stage are radical hysterectomy or trachelectomy with lymphadenectomy. तो आप बार बार फर्टिलिटी रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, Yes, sir. वो कैसे हो सकती है? सर वो trachelectomy and lymphadenectomy करेंगे ना, radical trachelectomy and lymphadenectomy either laparoscopic or नहीं, तो आप यूट्रस को बचा लेंगे सिर्फ ऊपर इस पेशेंट 1B। sorry sir, please repeat करें। मैं स्टेज 1B1 की बात हो रही है ना? Yes sir. तो आप तो उसकी सर्विस को निकाल देंगे, लिम्फेडेक्टमी कर देंगे और यूट्रस का बॉडी जो बचा देंगे। Yes sir. आपने कहा अभी। Yes sir. तो फिर ये सही ट्रीटमेंट मेरा माय इंप्रेशन इज इन दिस पेशेंट जो 35 है पैरा 2, पहले तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का रोल ही बहुत नीचे चला जाता है। मे बी अगर नलीप्रस पेशेंट हो तो हम सोचते हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये जो आप कंजर्वेशन ऑफ फर्टिलिटी की बात करते हैं, मे बी इन 1A, उससे आगे जितनी चली जाएगी बीमारी उसकी फर्टिलिटी की तो बात जान है तो जहान है, उसकी अपनी जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसकी अपनी जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसलिए आप 2-3 दफा चूंकि आपने दोहरा दिया फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट ना कीजिए। ओनली इफ द एग्जामिनर आस्क्स यू कि ये पेशेंट थी 335 पैरा 0+0 और वो कहती है मेरे तो बच्चे भी नहीं है, तो मैं अगर आपकी जगह हूँ मैं कहूँगा मैडम और सर, आई विल डिस्कस विद हर, द बेस्ट ट्रीटमेंट इज दिस hysterectomy, radical hysterectomy जैसे आपने बोला, and then we can save her ova and subsequently surrogacy। ये बोल रहे हैं। Yes sir. फर्टिलिटी के लिए यूट्रस बॉडी को बचाना या मैं उसका कम हाईलाइट करूंगा। आपने बार बार बोला इसलिए मैंने इस तरफ आ गया, वरना मैं तो ये डिस्कस भी नहीं करता। तो बात ये है डॉक्टर मारिया। जी सर। कोई बात नहीं, हमने पूरा घंटा यही बात की, कोई बात नहीं, हम जहाँ कौन सा सर पे खड़ा है। लेकिन तो 2 बातें, एक तो डॉक्टर कंवल अगली दफा हम उसी सर्विस की फिर बात करेंगे, आप केस प्रेजेंट करेंगी और ये डॉक्टर मारिया 10 मिनट के सी सर्विस के लिए टोक्स के एक स्टेशन की तैयारी करके आए। 10 हो गए। थैंक यू वेरी मच। कोई एक का सवाल पूछना हो तो पूछिए। ये मारिया और कमल भाग में जाना, मेरे साथ ये हुआ है। हमने कहा कि अगले वेडनेसडे को करेंगे। आई ना अस्सलाम वालेकुम सर। मारिया, आप और कमल ये दोनों प्रॉमिस करो कि आप आएंगी जरूर। यस सर, जरूर इंशाल्लाह। जी सर, सर आप सिनेरी देंगे ना? अब कोई कुछ पूछना चाहता है? कमल क्या? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप सिनेरी देंगे ना इस क्लास में? जी जी, कौन? निम्रा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई वांट टू डिस्कस समथिंग सर। मैंने एग्जाम दिया था लास्ट टाइम, तो उसमें से हमारा सिनेरियो आया हुआ था 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है और पेशेंट को एडिनोकार्सिनोमा है। तो सर काइंडली अगर सीए सर्विक्स एंड प्रेगनेंसी हम डिस्कस करेंगे। एक मिनट, 15 वीक्स की प्रेगनेंसी है
कार्सिनोमा किस चीज का? एंडोकार्सिनोमा। सर एडिनोकार्सिनोमा सी सर्विक्स का था सर, सी सर्विक्स है, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी हुई है। एडिनोकार्सिनोमा 5% होता है, 95% तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। खैर अगर तो पहले मुझे आप अपना जवाब बताइए, फिर मैं बताता हूँ कि वो सही है क्या था। आपने क्या जवाब दिया? डॉक्टर निम्रा थी क्या? जी तो हेलो नहीं, जिन्होंने सवाल पूछा था अभी इम्तिहान में कि 15 हफ्ते की प्रेगनेंसी है और एडिनोकार्सिनोमा सर्विक्स है, आप क्या करेंगी? तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ उन्होंने क्या जवाब दिया था इम्तिहान। आप चुप क्यों कर गई? मेरी बात नहीं सुन रही आप? सर मेरे ख्याल में ना उनका कोई इंटरनेट इशू है। चलो तो ये बार बार आ रहा है सबीन की तरफ। हमारे पेपर में भी था। बड़ी से बात है, एक मिनट जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा आपका पहला जवाब ये होना चाहिए कि बिफोर deciding the final treatment of this patient, I like to know her age and parity and wishes for the future. ये 3 लफ्ज बोल दीजिए। I would like to know her age, her parity, अब प्रेगनेंसी है, इससे पहले बच्चे हैं कि नहीं है, her parity and her wish। फिर मैं जो आप बार बार लिख के कह रही हैं, अगर प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी बिफोर 28 वीक्स नॉट वायबल और सीए सर्विक्स का नहीं, ब्रेस्ट का, ये का, वो का, कहीं का डायग्नोसिस होता है। आज का एक फिक्रा ये लिख लीजिए मोटा सा, ट्रीट द डिजीज, फॉरगेट द प्रेगनेंसी। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। अगर 28 वीक से पहले प्रेगनेंसी है और किसी पार्ट बॉडी का किसी हिस्से का डायग्नोसिस कैंसर आ गया, लाइक कुछ भी हो सकता है, एक्यूट लुकीमिया हो सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है। ये ब्रेस्ट बड़ा कॉमन, मुझे आज तक जिंदगी में वो पेशेंट नहीं भूली। एक डॉक्टर की बेटी मेरी पेशेंट प्रेगनेंसी में प्राइमरी ग्रेविडा सीए ब्रेस्ट, मैं मिन्नतें करूं उस डॉक्टर की भी, तुम्हारी बेटी है, ख्याल करो, क्या करते हो? तो नहीं जी, हमने वो एक पीर को पकड़ा है, उसने कहा बच्चा पैदा कर लो, मैं इलाज कर दूं। The poor girl died within few weeks of birth of the baby. तो यहाँ पे फिक्रा मेरा, आपने कहा दोबारा बोले, अगर नॉन वायबल प्रेगनेंसी है 28 वीक से पहले, हम समझते हैं हमारे मुल्क में और बाहर के मुल्कों में 22-24 से पहले, तो अगर नॉन वायबल प्रेगनेंसी है, फॉरगेट द प्रेगनेंसी, ट्रीट द कैंसर। जो उसका सही इलाज है वो करेंगे। अगर रेडिएशन है, रेडिएशन देंगे, सर्जरी है तो करेंगे, तो वगैरह वगैरह, फॉरगेट द प्रेगनेंसी। और अगर वायबल, एक मिनट आप माइक बंद, अगर वायबल प्रेगनेंसी है, 28 वीक से ऊपर है, then at the most best with consultation of multidisciplinary team and the patient and her husband, maybe we can delay delivery of the baby by 2 weeks or so, ताकि उसकी वाइबिलिटी बढ़ जाए, and then after 2 weeks terminate pregnancy, that means cesarean section, and
treat the cancer. मैं दोहराता हूँ, इम्पोर्टेंट है, इम्तिहान में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेगनेंसी के साथ कैंसर है, कोई भी कैंसर, नॉन वायबल प्रेगनेंसी, जैसा भी बोला गया 15 वीक्स, नॉन वायबल प्रेगनेंसी, फॉरगेट द प्रेगनेंसी, टर्मिनेट, जो भी करना है, तो terminate and treat the cancer. If it is viable, just to help viability, maybe delay of week or two, ताकि 28 है 30 वीक्स का ज्यादा वायबल होता है, 30 है तो 32 वीक्स का ज्यादा वायबल, तो वो आप पीडियाट्रिशियन के साथ मशवरा, मैक्सिमम अलाउड इज 2 वीक्स, इज फिर उसको डिले करके सिजेरियन सेक्शन ट्रीट द डिजीज और कैंसर। किसी ने इसके मतलब पूछना तो पूछ ले, वरना खत्म कर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हमारे पास ये पेशेंट है, तो आई वुड लाइक टू स्टेज द डिजीज ऑफ माय पेशेंट, लेकिन सर इसकी स्टेज तो हम एज स्टेज इज क्लिनिकल, तो हम इस पेशेंट की फिर स्टेजिंग एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया में करेंगे ना, एग्जामिनेशन के बाद जो एक हम जनरल एग्जामिनेशन इसका परफॉर्म करें। वो जरूरी नहीं है, स्टेजिंग का हिस्सा नहीं है EUA, लेकिन इट इज परमिसिबल कि यू कैन डू EUA एंड देन प्रॉपर स्टेजिंग एंड देन बिकॉज क्योंकि सर सम टाइम इतना ये कैंसर एक्सटेंडेड उसमें प्रेजेंट करता है कि हम वॉल्स को एग्जामिन ही नहीं कर पाते। आपकी बात बिल्कुल सही, मैंने कहा ना कि फॉर कंफर्म्ड स्टेजिंग आई लाइक टू डू EUA। ठीक है, ओके, चलें। अच्छा, अगली दफा फिर हम CA सर्विस की बात करेंगे और डॉक्टर कमल कराची से पेश करेगी हिस्ट्री और मारिया हैदराबाद वो सेशन। सर प्लीज इन्वेस्टिगेशन एक सीक्वेंस में रिपीट कर दीजिएगा जिस तरह हमने बोली है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस, पहले तो हो गया ना कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, राइट, और दूसरा हो गया कंफर्मेशन ऑफ स्टेज ऑफ द डिजीज, उसके लिए अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत, फिर उसके बाद जब इसकी डायग्नोसिस हो गया, फिर उसकी जनरल हेल्थ की इन्वेस्टिगेशन में स्पेशली उसकी हीमोग्लोबिन, ये बोलेंगे आप हीमोग्लोबिन, क्योंकि दे आर एनीमिक जनरली, एंड इफ नीड बी तो करेक्शन ऑफ एनीमिया, यही बोलती। और बाद में उसके LFT बोले और RFT बोले गए, वो मुझे कबूल है वो, क्योंकि जो भी है वो उसकी कीमोथेरेपी में लिवर फंक्शन टेस्ट जरूरी हैं, और वैसे भी लोकली रेडिएशन से इतनी डिस्टर्बेंस होती है, आप जिनको मिलती है उनसे पूछिए। तो LFT RFT करके पहले कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, LFT, RFT, और फिर जो भी नीडफुल इन्वेस्टिगेशन, जैसे इसमें CT MRI हर एक में करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन इफ यू फील कि दैट विल बी हेल्प तो CT MRI भी कर लेंगे, इवन PET स्कैन भी कर लेंगे। सर मुझे एक सवाल पूछना है सर। डॉक्टर निगत, हाँ जी सर, ये मैं पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई प्रेगनेंसी के साथ है और हम उसका कंजर्वेटिव ऑप्शन ले भी रहे हैं, तो जिसमें आ जाते हैं कि स्टेज 1A1 में जैसे कोनबा FCA, आगे सिंपल ट्रेकिलेक्टमी या रेडिकल ट्रेकिलेक्टमी, इन सब में सर्वाइकल सर्कलाज लगता है या सिर्फ रेडिकल ट्रेकिलेक्टमी लगता है? नहीं, क्यों? वो जो नेक ऑफ द बॉडी रह जाएगा, वहाँ सर्कलाज लगाना जरूरी हो जाएगा। That internal os doesn't hold that strongly. तो आपने देखा नहीं होगा सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में सबसे पहले तो इंटरनल os है which gives way, जिसको फनलिंग ऑफ सर्विक्स कहते हैं। उसमें क्या होता है, इंटरनल os खुल जाती है, तो इसलिए उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा उसको प्री प्रेगनेंसी सर्कलाज होना चाहिए।
सर कौन बायोप्सी में भी लगाएंगे? अगर कौन बायोप्सी का ऑप्शन है कोन उसमें- बायोप्सी का लिखा हुआ है कि इट आल्सो लीड्स टू इनकॉम्पिटेंट, लेकिन अगर कौन के बाद एक प्रेगनेंसी आप चांस लें विदाउट स्टिच, और अगर वो वही मिड ट्राइमेस्टर वाली पी प्रॉम वाली बात हो, तो फिर अगली दफा आई वुड से कि प्री प्रेगनेंसी उसको लगाए। चले, ऑल द बेस्ट, फिर अगली दफा फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। I hope you have enjoyed the class as much as I have done, although हम बेसिक पे ही ठहरे रह गए, क्योंकि इम्तिहान ये नहीं सर पे है, इसलिए ने इस पे काफ़ी आपका वक्त ज़ाया किया कि हिस्ट्री लेने की क्या कैसे चाहिए, कैसे लेनी चाहिए। आप फोकस करें, यहाँ पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग 35 ईयर ओल्ड पहला डायग्नोसिस, सीए सर्विस के रिस्क फैक्टर पूछें, ऐसे उधर उधर की टीबी भी मैं तो जाऊंगी ना ये रखो। ओके जी, खुदा हाफिज। थैंक यू सर।